Hi, in this unit, we learn everything about immunology. So, let's start with what is immunity. Please have your registers and pens because you would have to jot down many concepts here. So, now let's start with immunity. Now, what is immunity? Immunity is the defense mechanism of our body. Now, what do you mean defense mechanism? So, that means whenever any foreign particle or any pathogen enters our body or tries to enter our body, then our body's defense mechanism it acts in a way to evade it and save our body. So now in this unit we learn what are the mechanisms and the cells involved by our body to evade such foreign particles or pathogens. Clear? Now, there are two types of systems or two types of responses that body does when it encounters any pathogen. One is innate immune response. Now, innate immune response means whatever our body is made up of. Cool. It is just there in our body. Cool. And the other is acquired immune response, which we'll talk about it later, but that involves specific cells from our body, which is like B cells, the T cells that we know that are known as the immune cells of our body. So in this particular chapter, we'll mainly focus about innate immune response. And the basic is whenever any pathogen enters our body, first it has to pass through all the innate immune response of our body. And if the innate immune response cannot fight with the pathogen, it calls for the acquired immune response to fight. And if acquired also cannot fight, only in that case we need to take antibiotics. Cool. Now let's start. So, innate immune response is also known as the first line of defense for our body because that is the first thing that any foreign pathogen encounters. Like now the key features of this is it is very non-specific, like as in whenever any pathogen enters, so for any pathogen it will act as the same. It is not choosy कि only for this kind of bacteria I'll kill it, or for this kind of fungi or virus. No, it just does the same things for all the pathogens. Now because it does the same things for all the pathogens, that's the reason it's very fast acting. Cool. Then it is always also very ready because it has to work on similarly for everyone. Now, what does it mean to have no memory? Now, what happens is whenever a foreign particle encounters, like suppose there is a pathogen A which comes in our body and our body fights. The only innate immunity of our body fights with it, and then the pathogen goes off. Then, so only with now next time whenever that pathogen A again enters our body, again the innate immunity will fight in the same manner. It does not have any memory कि अच्छा it has come before also, वैसा कुछ भी नहीं है, right? तो वो पहले भी आया है तो कोई इशू नहीं है, हर बार उसी तरीके से फाइट किया जाएगा. वाइल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है ना, देयर दे हैव दिस मेमोरी. तो दे रिमेम्बर कि अच्छा पहले भी यही वाला पैथोजन आया था बॉडी में, तो नाउ दे हैव एंटीबॉडीज ऑलरेडी मेड फॉर दैट पैथोजन. तो नेक्स्ट टाइम जब सेकंड एनकाउंटर होता है ना उस पैथोजन का, तो वो उसको और भी ज्यादा जोर से लड़ाई करते हैं. जैसे हम घर में करते हैं ना कि एक बार किसी ने कोई गलती करी तो वी आर स्टिल लाइक चलो ठीक है, बट सेकंड टाइम बिकॉज वी रिमेम्बर कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, तो देन वी जस्ट गो फुल ऑन देम. तो उस तरह से इनके पास कोई मेमोरी है नहीं. सो अब ये इनेट इम्यून रिस्पॉन्स होता क्या है, what it is, and how do we fight, how does the body fights with any pathogen that enters. So body has now four types of barriers for any pathogen that enters our body. So, for example, one is the physical barrier, like skin and mucous membrane. So, whenever any foreign pathogen enters our body, तो सबसे पहले तो वो skin से ही enter होगा. Now, that skin can be present anywhere, right? कि for example, if that pathogen is lung वाला, तो भी skin है. If that pathogen is kidney वाला, तो भी skin है. If that मतलब तो किसी भी organ के आसपास there is a skin, right? तो सबसे पहले there is a physical barrier. Okay.
एंड फिजिकल बैरियर इज मेड अप ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. तो अगेन किसी भी पार्टिकल का जो भी सेल है, सेल के आसपास का एपिडर्मिस है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये सब सारे सेल्स में प्रेजेंट है. तो इट इज फॉर ईच एंड एवरी पैथोजन फॉर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. Then it is physiologic. Now what is physiologic? Physiologic is कि अगर वो पार्टिकल स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन से भी अंदर एंटर कर जाता है तो वो सेल के अंदर एंटर कर गई. अब सेल की जो फिजियोलॉजी है उस पर डिपेंड करेगा दैट पार्टिकल कैन बी इनसाइड या फिर वो बाहर चला जाएगा. तो जो हमारे सेल की फिजियोलॉजी है वो ही इस तरीके की है कि वो किसी फॉरेन पार्टिकल को या पैथोजन को आने ही नहीं देती है. तो फिजियोलॉजी का क्या मतलब है? जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का जो पीएच है, या जो केमिकल मीडिएटर्स हैं, मतलब जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है तो कुछ केमिकल सिक्रीट करती है हमारी बॉडी. तो ये सब कुछ इस तरीके से होते हैं कि जो बॉडी है वो खुद ही ध्यान रखती है कि कोई पैथोजन अंदर ना आ पाए. Now then it is endocytic and phagocytic barriers. अब ये क्या होता है कि मान लो कि अब कोई बॉडी टेम्परेचर, पीएच या केमिकल मीडिएटर से भी कोई पैथोजन किल नहीं हो पाया, ठीक है, बाहर भी अब आ गया उसके अंदर भी. तो देन अब वो सेल के अंदर तो आ ही गया है. अब क्या होगा कि उनका एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस हो जाएगा. तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को सेल जब इन्वेजिनेट करके खा लेता है, और फैगोसाइटोसिस भी वैसे ही होता है, माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं. देन देयर इज समथिंग आल्सो नोन एज पिनोसाइटोसिस. विल स्टडी अबाउट इट लेटर. अब ये जो एंडोसाइटोसिस होता है, ये मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस यही होते हैं जो एंडोसाइटोसिस करते हैं. अब जब ये एंडोसाइटोसिस होता है और ये सारे प्रोसेस होते हैं तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, राइट. तो अगर कोई सेल बॉडी को एंडोसाइटोस नहीं कर पाया, उस पैथोजन को एंडोसाइटोस नहीं कर पाया, तो क्या होगा? तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स अपनी बॉडी शो करेगी. कहीं ना कहीं से स्वेलिंग हो जाती है कभी ना कभी, राइट. तो वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है. वो इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वैसोडाइलेशन, इंक्रीज इन कैपिलरी परमिएबिलिटी, या और ज्यादा फैगोसाइटोसिस हो जाता है उसमें. तो वील ऑल स्टडी अबाउट इट लेटर. बट दीज आर द प्रोसेसेस कि जब से अंदर आया, अगर स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन से नहीं रुका तो फिर और अंदर आएगा. टेम्परेचर, पीएच को भी अगर बच गया तो उनका एंडोसाइटोसिस हो जाएगा. अगर वो भी बच गया तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा. और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है बॉडी में, तब फैगोसाइटोसिस होता है. लिखा है ना, इन्फ्लक्स ऑफ फैगोसाइटोसिस. तो तब फैगोसाइट जो सेल्स होते हैं वो अंदर आते हैं और तब वो इन्हें खाते हैं, ठीक है. अब अगर इन सब चीजों में भी वो बच जाएगा तब फिर आवर बॉडी विल ट्रिगर B and T cells, that it will activate the B and T cells और तब that will work, ठीक है. सो दैट मीन्स ये जितना भी हमारा इम्यून सिस्टम है, अक्वायर्ड हो भले इनेट हो, बट इट वर्क्स हैंड इन हैंड. अलग अलग काम नहीं करते, एक साथ काम करते हैं. अगर इससे सारे स्टेप्स में नहीं हो पाया तो अगले स्टेप्स वो होते हैं, राइट. इट जस्ट हेल्प्स ईच अदर. तो एज आई जस्ट सेड कि ये काम कैसे करता है. पहले पैथोजन अगर एंटर कर रहा है बॉडी में, फिर उनका रिकग्निशन होगा एंड एनगल्फमेंट हो जाएगा. और अगर उनका एंडोसाइटोसिस वगैरह हो गया और फिर भी वो मरे नहीं हैं, पैथोजन को हम इविट नहीं करवा पाए, तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस ट्रिगर होंगे. और इन्फ्लेमेशन कैसे होता है? वैसोडाइलेशन से होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं. तो डायलेट होके वो क्या करते हैं? वो ऐसे केमिकल साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जिससे फैगोसाइट्स अंदर आते हैं और फिर पैथोजेंस को खा लेते हैं. Now let's study in detail about skin and mucous membrane, कि कैसे skin and mucous membrane help करते हैं to evade pathogens. तो this is see this diagram कि जो pathogens हैं, like for example these are the pathogens and this is the way how they have evaded our skin और वो अंदर आ गए, right. तो ये सब हम जानते हैं, लाइक जैसे मस्कीटो बाइट से पैथोजन अंदर आ जाता है. मलेरिया होता है ना, ऐसे ही मस्कीटो के ऊपर पैथोजन होता है, मस्कीटो ने बाइट किया तो पैथोजन जो है वो अंदर आ गया, ठीक है. तो इसी तरह से पैथोजेंस अंदर आ जाते हैं. अब जब वो अंदर आ रहे हैं तो ये जो फिजिकल लेयर है स्किन की, ये उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दी. अब स्किन बनी भी कैसे होती है? दिस इज द डायग्राम. सो स्किन के ऊपर सबसे पहले एक थिन एपिडर्मिस होती है, उसके बाद एक थिक डर्मिस होती है, उसके बाद एक वापस से थिन हाइपोडर्मिस होती है. अब एपिडर्मिस, सी दिस लेयर हैज नथिंग, राइट. सो एवरीथिंग
फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लड वेसल्स हैं, these are the hair follicles, then these are the sebaceous glands, sweat glands, so all the things are present in dermis, लेकिन डर्मिस से वो निकल के हेयर फॉलिकल्स जैसे इसमें आ जाते हैं, राइट। फॉर अगर मतलब इफ यू रिमेम्बर, तो जब हमें इंजेक्शन भी लगता है तो वो नीडल को थोड़ा सा अंदर घुसाना पड़ता है, बिकॉज एपिडर्मिस पे ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। ब्लड वेसल से ब्लड लेने के लिए यू नीड टू पुट देम थोड़ा सा इनसाइड, बिकॉज वो डर्मिस में होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि डर्मिस में जैसे सिबेशियस ग्लैंड्स जो हैं, तो ये जो सीबम प्रोड्यूस करती है, तो ये सीबम की अंदर ऐसे सीबम एक्ट्स एज जो अट्रैक्ट करती है पैथोजेंस को, ठीक है ना। तो पैथोजन सीबम के अंदर फंस जाते हैं और फिर यहाँ पे सीलिया लगे हुए होते हैं, तो सीलिया से पैथोजेंस को बाहर निकाल देते हैं। तो दैट वे स्किन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पैथोजेंस। तो जो भी पैथोजन आएगा वो सीबम के अंदर चला जाएगा और फिर उसको बाहर ले लिया जाएगा। नेक्स्ट ये भी होता है कि जो सीबम होता है ना, इसका पीएच भी बहुत एसिडिक होता है। तो अब एसिडिक पीएच पे ये जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, ये ग्रो नहीं कर पाते। So this is also one of the reasons how sebum या sebaceous glands help us to prevent pathogens, क्योंकि ये एसिडिक होते हैं, तो बैक्टीरिया वगैरह यहीं भी मर जाएंगे और अंदर नहीं जा पाएंगे हमारी बॉडी के। Cool. So here there are some diseases, जैसे मलेरिया I already talked about, then there is bubonic plague, ये flea bite से फैलता है। Lyme disease, this is tick bite से फैलता है। Then next comes our physiologic और केमिकल मीडिएटर्स। तो अब अगर स्किन या स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को इवेट करके पैथोजन अंदर आ भी गया, तो अंदर सेल में, बॉडी में क्या होगा, अंदर बॉडी में उसको फिजियोलॉजिक कंडीशन से पास थ्रू करना पड़ेगा। व्हाट आर फिजियोलॉजिक कंडीशंस? लाइक टेम्परेचर, पीएच एंड सम सॉल्युबल फैक्टर्स। नाउ व्हाट इज दिस टेम्परेचर? तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, राइट, तो दैट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारी बॉडी का है, वो टेम्परेचर माइट नॉट बी वेरी हेल्दी टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ मेनी पैथोजेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो चिकन होते हैं उनको कभी भी एंथ्रैक्स नहीं लगता है, क्योंकि जो बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है वो चिकन के हाई बॉडी टेम्परेचर में ग्रो ही नहीं कर पाता है, तो इसलिए चिकन इज इम्यून टू एंथ्रैक्स। सेकेंड, इफ वी सी टॉक अबाउट पीएच, तो वी ऑल नो जैसे हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक जूसेस जनरेट होते हैं स्टमक में, पूरे डाइजेशन प्रोसेस में, तो ये जितने भी जूसेस होते हैं मेनली एसिडिक होते हैं। एंड एज आई जस्ट सेड कि ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है विच इज वेरी इट इज हार्मफुल फॉर पैथोजेंस, तो वो पैथोजेंस को मार देता है। लेकिन एट द सेम टाइम इसीलिए बच्चों को बहुत जल्दी डिजीजेस लगती हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर इतने सारे एंजाइम्स, इतने सारे एसिड्स बनते नहीं हैं, और बनते नहीं है इसलिए वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। देन देयर आर सम सॉल्युबल फैक्टर्स जो हमारी बॉडी रिलीज करती है, जैसे लाइसोजाइम्स है, इंटरफेरॉन है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का। दीज आर द सॉल्युबल फैक्टर्स जो बॉडी रिलीज करती है ताकि इन सारे पैथोजेंस को वो केमिकली मार दे। क्लियर? अब अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन से भी इवेड नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो ये है कि हमारी बॉडी उसको एंडोसाइटोस या फैगोसाइटोस कर लेगी। अब एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस, या एक और टर्म होता है पिनोसाइटोसिस, ये कैसे होता है? अब जो पिनोसाइटोसिस तो ओके, उसको बोलते हैं जब माइक्रो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकुलेट मैटर जब अंदर आता है तो उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, और जब भी कोई मैक्रो मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं तो दैट इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। ठीक है। अब ये जो एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस जो होता है, ये दो तरीके का होता है। एक तो डायरेक्टली अगर कोई पार्टिकल है, मेम्ब्रेन पे है, उसको इन्वेजिनेट कर लिया है मेम्ब्रेन ने और वो अंदर आ गया है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर चली गई है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बाहर के जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको एनगल्फ कर रही है। ठीक है, इन्होंने स्यूडोपॉड्स बना दिए हैं और वो एनगल्फ कर रही है और फिर बाद में वो अंदर आ गई है। सेकेंड, एक और तरीका क्या होता है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस इज वेयर सेल के सरफेस पे रिसेप्टर्स हैं, तो बाहर जितने भी पैथोजेंस होंगे उनका कोई ना कोई रिसेप्टर होगा, वो रिसेप्टर से जुड़ेंगे और फिर उनका एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। कूल है। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये या तो क्लैथरिन कोटेड होते हैं या तो क्लैथरिन नॉन कोटेड होते हैं। ये सारा अपने इस करिकुलम के थोड़ा बाहर है, बट
आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्लैथरिन नाम आपने सुना हुआ होना चाहिए ना। अब ये जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है, आप इस सेकंड डायग्राम में देखिए, तो अब वो रिसेप्टर्स के साथ वो अपने लाइगेंड्स में जुड़ते हैं और फिर उसका एंडोसाइटोस हो जाता है, वो अंदर आ जाते हैं। अब जब भी ये अंदर आते हैं तो अंदर आके इनका होता क्या है, तो अंदर आके ये ऐसे एंडोसाइटिक वेसाइकल बनाते हैं, ठीक है। जैसे एंडोसाइटोसिस हुआ, इन्होंने मेम्ब्रेन से ये टूट गए, जब वो टूट जाते हैं मेम्ब्रेन से तो उसको एंडोसाइटिक वेसाइकल बोलते हैं। उसके बाद गोल्जी जो है, गोल्जी कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करती है, लाइसोजाइम्स रिलीज करती है, और उससे यहाँ पे जो प्राइमरी लाइसोजाइम्स हैं वो एंडोसाइटिक वेसाइकल से फ्यूज होके सेकेंडरी लाइसोजाइम्स बना लेते हैं। और लाइसोजाइम देखो इसके नाम में ही छुपा है, लाइसो मतलब लाइज करना है, तोड़ना है किसी चीज को, जाइम मतलब एंजाइम है, तो वो ऐसा एंजाइम है जो चीजों को तोड़ने के काम आता है, तो उसके अंदर की जो फैगोसाइटिक पार्टिकल्स है उनको तोड़ने के काम आता है। तो अब ये लाइसोजाइम्स उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद वापस से अगर ये रिसेप्टर मीडिएटेड है तो रिसेप्टर्स को वापस ये देखिए जैसे सेल सरफेस पे भेज देते हैं, और अगर रिसेप्टर मीडिएटेड नहीं है तो रिसेप्टर्स को तो सेल सरफेस पे भेज दिया और बाकी ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हें बाहर भेज दिया, एक्सोसाइटोसिस हो जाता है। तो कुछ पार्टिकल्स को खा लिया जाता है, लाइसिस हो जाता है उनका, क्योंकि ये लाइसोजाइम है, एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो पार्टिकल को तोड़ देता है। लाइसिस होने के बाद जो डेब्री बचती है वो सब एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकाल दी जाती है। क्लियर है? तो मैं वापस बता देती हूँ, दो तरीके से एंडोसाइटोसिस होता है, एक रिसेप्टर के साथ, एक रिसेप्टर के बिना। अब और भी जो रिसेप्टर के बिना भी जो होता है वो भी दो तरीके से होता है, एक जो इन्वेजिनेट हो जाता है, दूसरा जिसमें बाहर सूडोपोड्स निकल आते हैं और बाहर जाके वो खा के आता है। अब सारे ही केसेस में, रिसेप्टर हो, इन्वेजिनेशन हो या सूडोपोड्स हो, लेकिन सारे ही केसेस में जब एक मेम्ब्रेन बाहर बन जाती है और उसके अंदर फैगोसाइट्स पैथोजेंस आ जाते हैं, तो अब वो अलग हो जाता है वो मेम्ब्रेन और पैथोजन के साथ, तो उसको हम एंडोसाइटिक वेसाइकल बोलते हैं। एंडोसाइटिक वेसाइकल जब सेल के अंदर आ जाता है तो वहां पे वो लाइसोजाइम से मिलता है विच इज सिक्रीटेड बाय गोल्जी अपैरेटस, और उसके बाद लाइसोजाइम जो होते हैं वो अंदर एंडोसाइटिक वेसाइकल के साथ मिलके सेकेंडरी लाइसोजाइम बनाते हैं और उसके अंदर वो पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जो डेब्री होती है वो एक्सोसाइटोसिस से बाहर चली जाती है, अगर ये रिसेप्टर मीडिएटेड है तो रिसेप्टर्स वापस रिसाइकिल होकर सेल के मेम्ब्रेन पे चले जाते हैं। कूल। तो अब अगर कोई भी पैथोजन इस तरीके से भी नहीं मारा गया कि भाई उसका एंडोसाइटोसिस ही नहीं हुआ, किसी भी तरीके से वो इवेड हो गया मान लो, तो अब क्या होता है कि अब एक पैथोजन है हमारी बॉडी में, राइट, मतलब अगर हमारे घर में कोई एक अनवांटेड गेस्ट आता है या कोई चोर आ जाता है, तो अब कोई है हमारे घर में, हमें पता तो चलेगा ही ना, कुछ हिलेगा, कुछ टूटेगा, कुछ आवाजें आएंगी, कुछ तो पता चलेगा, राइट। तो वैसे ही बॉडी के साथ भी होता है, अगर इतना सब कुछ होके भी हम बॉडी उसको इवेड नहीं कर पा रही, कुछ तो और होगा ही, तो वो कुछ और क्या होता है, वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। तो क्या होता है कि जब भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में होता है तो वो क्या करता है कि चार तरीके के सिम्टम्स शो करता है। एक तो हीट, भाई कहीं से भी अगर हमें स्वेलिंग हो जाती है तो वो स्वेलिंग में क्या होता है, वो वाला एरिया पूरा सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, उस पूरे एरिया को वो रेड रेड हो जाता है तो रेडनेस, फिर वो वाला पूरा एरिया गर्म भी रहता है तो हीट, और उस एरिया में दर्द भी होता है, तो ये हीट को बोलते हैं कैलर। तो हीट, रेडनेस, स्वेलिंग और पेन, ये चार अगर चीजें होती हैं इसका मतलब इम्यून इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो गया है, ठीक है। अब ये चार चीजें होती क्यों है इन्फ्लेमेशन में, ऐसा क्या हो जाता है इन्फ्लेमेशन में, ओके, अब हम उस पर बात करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन में वैसोडायलेशन होता है, जैसे हमने पहले भी बात किया था कि इन्फ्लेमेशन जब भी हो रहा है तो जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, तो कोई भी एक एरिया सूज क्यों रहा है, उसमें इन्फ्लेमेशन क्यों है, इतनी रेडनेस क्यों है, टेम्परेचर क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि वहां की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो गई है। अब आप सोचिए अगर कहीं की ब्लड वेसल ही डायलेट हो जाएगी मतलब वहां पे ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, क्लियर है। अब अगर वहां पे ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो एरिया क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा,
क्लियर। अब और दूसरा क्या होता है, वहां की कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगर कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब बाहर से भी चीजें आ रही, तो बाहर से कौन अंदर आएगा, वो सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स जो पैथोजन को खाना चाहते हैं, तो अब फैगोसाइटिक सेल्स अंदर आ रहे हैं। फैगोसाइटिक सेल्स में लिम्फ सेल्स भी होते हैं, अपनी बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये सब अंदर आते हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ये भी अंदर आते हैं, क्योंकि अब उन्हें पैथोजन को खाना है। तो कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और ये सब भी अंदर आते हैं। अब जब ये सब कुछ अंदर आते हैं तो फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे सेल्स अब एक इतनी सी एरिया में आ गए हैं, तो फिर इन्फ्लेमेशन तो होगा ही। ये क्लियर है? तो तीन चीजें होती है, वैसोडाइलेशन, कैपिलरी इंक्रीज इन कैपिलरी परमिएबिलिटी एंड इन्फ्लक्स ऑफ फैगोसाइट्स। क्लियर है? तो इसी की वजह से हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस, पेन, ये सब चीजें होती हैं, एज आई जस्ट एक्सप्लेन। ठीक है, अब जैसे हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये है कि कभी कभी तो लोकली टेम्परेचर बढ़ता है, कि भाई उसी एरिया में बहुत ऐसा लग रहा है, क्योंकि लोकली कोई पैथोजन लग गया, इतना सा एरिया है जो सूज गया। लेकिन कभी कभी हमें बुखार आता है ना, और हमें लगता है कि अरे यार कुछ तो इन्फेक्शन हुआ होगा, बुखार क्यों आ गया, अभी तो हम सही थे। वो बुखार इसलिए आता है कि कोई ना कोई आपको इन्फेक्शन हो जाता है। तो कोई भी पैथोजन जब आता है, तो ये जब मतलब जब उसने स्किन, फिजियोलॉजिक सारे फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स, एंडोसाइटोसिस सब कुछ इवेड कर गया, तब फाइनली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ, तो तब हमें बुखार आता है। ऐसे ही उसके अंदर आते ही बुखार नहीं आ जाता। इसीलिए कहते हैं, कई लोग कहते हैं, और मैं भी इस बात को मानती हूँ, कि जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं वो कभी भी बुखार में दवाई नहीं खाते, और मैं भी ट्रूली इस चीज को मानती हूँ। वाई? बिकॉज बुखार एक वो स्टेट है जो आपको बताती है कि आप बीमार हैं, आपके अंदर पैथोजन आ गया है, राइट? अब आपकी बॉडी लड़ रही है उस पैथोजन से। एंड एज आई जस्ट सेड कि ये तो इन्नेट इम्यूनिटी की लास्ट स्टेज है, चलो इन्फ्लेमेशन, इसमें तो बॉडी फाइट करेगी, और अगर इससे भी सेल्स बच जाते हैं, तो अब तो वो अक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटर करेंगे, बी और टी सेल्स। अभी तक तो वो आए भी नहीं है। अगर उससे पहले ही आप तो घबरा के कॉम्बी फ्लेम खा लेते, कॉम्बी फ्लेम खाना क्यों गलत है? क्योंकि कॉम्बी फ्लेम अचानक से आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नीचे कर देती है। अब आपका टेम्परेचर तो कम हो गया, लेकिन अब उससे ये हुआ कि आपको पता भी नहीं चला कि आपकी बॉडी में कितनी सारी दिक्कत हो रही थी। आपकी बॉडी में दिक्कत थी, बॉडी ने आपको बताया, और आपने क्या किया? इलाज नहीं किया, सिर्फ टेम्परेचर कम कर दिया। अब इलाज क्या होता? इलाज ये होता कि अगर आप एंटीबायोटिक खाते तो आप उसको लड़ने की क्षमता देते, लेकिन एंटीबायोटिक भी खाना नहीं चाहिए भाई। अब वो उसका क्या सीन है? देखिए, एंटीबायोटिक क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि अभी आपकी बॉडी, जब आपको फीवर आया ही आया है, तो अभी तो वो घुसी भी नहीं है अक्वायर्ड इम्यूनिटी में, अभी तो बी और टी सेल्स ने लड़ना भी शुरू नहीं किया है। तो जब वो लड़ेंगे ही नहीं, तो आपको कैसे पता कि अभी के अभी आपको एंटीबायोटिक खा लेनी चाहिए? तो आप 2-3 दिन रुकिए, जब बुखार आया है, तो उसके बाद जब बी और टी सेल्स भी अपना फाइट करें, और अगर फिर भी आपका बुखार कम नहीं हुआ है, तब आपको बाहर से एंटीबायोटिक देनी चाहिए, कि ओके अब तो मेरी बॉडी तो नहीं लड़ पा रही है, अब मैं दूंगी। अभी ही अगर आप एंटीबायोटिक दे देते हो, तो ठीक तो आप हो जाओगे, अंदर से हो जाओगे, चीज भी सही होगी, लेकिन आपने अपनी अंदर की इम्यूनिटी पे भरोसा ही नहीं किया, आपने अपने सेल्स को काम ही नहीं करने दिया। तो ये जो एंटीबायोटिक है, दिस वाज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, बट यू हैड इट। आई होप आई मेड इट वेरी क्लियर। कूल। वैसे भी ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान था, नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर एग्जाम्स। हाँ, इसमें कुछ टर्म्स हैं, ये थोड़े से देख लेते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है और फैगोसाइट्स अंदर आते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मतलब है कि केमिकल्स को देख के सेल्स उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, ठीक है? तो जो फैगोसाइट्स होते हैं वो तभी आते हैं जब वो कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स को देखते हैं, और जब वो उनको देखते हैं तभी फैगोसाइट्स को पता चलता है कि अब अच्छा यहाँ पे तो मेरी जरूरत है, और तब फिर वो उसकी तरफ आ जाते हैं। तो केमिकल की तरफ चले जाने को नोन एज कीमोटैक्सिस, ठीक है? इसे कीमोटैक्सिस बोलते हैं। देन क्या होता है, इस पूरे सिस्टम में ना कुछ केमिकल मीडिएटर्स भी रिलीज होते हैं, मतलब कुछ सॉल्युबल फैक्टर से भी रिलीज होते हैं। वो क्या होते हैं? तो इन केमिकल मीडिएटर्स को सबसे पहले तो सीरम प्रोटीन्स कहते हैं, सीरम प्रोटीन्स कह लो या एक्यूट फेज प्रोटीन्स कह लो। इसमें ये 4 तरीके के होते हैं। एक तो है सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो भी रिलीज होता है। दूसरा हिस्टामिन रिलीज होता है, काइनेन्स रिलीज होते हैं, फाइब्रिन रिलीज होते हैं। अब हिस्टामिन क्या होता है? जैसे मैंने बताया वैसोडाइलेशन हो रहा है, तो वैसोडाइलेशन में हेल्प करता है हिस्टामिन, तो जब ये रिलीज होता है तभी वैसोडाइलेशन होता है।
देन एज आई जस्ट सेड कि थोड़ा सा पेन भी हो सकता है लोकली, राइट? तो जब आपको पेन होता है तो अच्छा, अब पेन भी एक तरीके की वो चीज है जो बॉडी को हेल्प करता है। मतलब जब जब आपकी बॉडी इतनी फाइट कर रही होती है तभी उसको पेन भी होता है, तो पेन इज ऑल्सो अ गुड थिंग इन अ वे। ओके, तो पेन को स्टिमुलेट करना, मतलब पेन के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने के लिए होते हैं काइनेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट है फाइब्रिन। फाइब्रिन होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो अब जब इतना कुछ हो रहा है, इतना सारा ब्लड बह रहा है, वैसोडाइलेशन हो गया है, तो अब वो वाला, अगर हमें यहाँ पे कोई बाइट हुई, ऑब्वियसली कोई वूंड हुआ है तभी ये कुछ हो रहा है। अब जब वूंड हुआ है तो ब्लड तो सारा बाहर निकल जाएगा, वो तो हम नहीं चाहते। तो इसीलिए ये फाइब्रिन्स आते हैं ताकि उस पूरे वूंड के एरिया में ब्लड क्लॉट हो जाए। अब अगर वहां से ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो एटलीस्ट ब्लड बाहर नहीं आएगा और वहां पे रिपेयर शुरू हो जाएगा। तो वुंड जब भी होता है तो वुंड का पहले रिपेयर करना है, फिर वो वुंड रीजनरेट होता है, और उसके लिए पहले ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत जरूरी है, फिर वहां पे कैपिलरी मेश बनता है, एंड फिर वो रीजनरेट, वो एरिया या वो वुंड रीजनरेट होता है। कूल है। सो अगर एक बार समराइज कर लेते हैं पूरे इनेट इम्यूनिटी को, एज वी सेड कि बहुत ही फास्ट होता है बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ही जल्दी जल्दी मिनट्स टू आवर्स में ही ये, जैसे कोई पैथोजन आता है उसके एंट्री से मिनट्स टू आवर्स में ये एक्ट करने लग जाता है। फिर इसकी कोई मेमोरी नहीं होती है, मतलब हर बार जब भी पैथोजन एनकाउंटर होगा वो सेम ही तरीके से होगा, सेम ही स्पीड में होगा। एंड इसका बिकॉज कोई मेमोरी नहीं होती तो इसलिए हमेशा सेम ही रहता है। ये कुछ भी हाइटेंड रिस्पॉन्स जैसा हम अक्वायर्ड में पढ़ेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आई होप आई हैव मेड यू innate immunity very clear. Thank you. Meet you in the next chapter.